Well, good morning, students. Let us revise our topic noun. Okay, we have already studied what is noun. I have already sent you a video of my notes and I have already provided you many worksheets also. Now, quickly revise the topic. Noun is the name of a person, animal, place, or thing. It may also name a feeling or idea. Okay, example: boy, girl, Neha, Kanpur, hospital, stone, army, anger, beauty are all nouns. Okay, next is kinds of nouns. kinds of nouns में हमने पढ़े थे ना, kinds या फिर types में proper noun, common noun, abstract noun या फिर collective noun. ठीक है, ये भी हमने पढ़े थे, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, अ नाउन विच नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. Next comes the common noun. Common noun, that a noun that gives a common name to a person, place or thing of the same kind is called a common noun. ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट टच और सी. ओके, नाउ move on to next, collective noun. A collective noun is the name of a collection of persons or things taken together and spoken of as one whole, like army, bunch, pack, fleet are collective nouns. A collection of soldiers, collection of keys और grapes के लिए bunch use होगा. ठीक है, pack के लिए collection of dogs, fleet a collection of ship or cars. Now see exercise 1. Pick out the nouns in the following sentence. Say whether they are proper, common, abstract or collective noun. Next is form abstract nouns. Next, abstract nouns. You can solve these exercises for your practice. Let us learn the use of following collective nouns. Then crossword puzzle है. This is also for your collective noun. You can do it in your notebook. All these. Okay. Then abstract and concrete noun. Nouns can also be classified as abstract or concrete. Abstract nouns name feelings. Abstract nouns हमारे क्या बताते हैं? Feelings, जैसे कि love, anger. Qualities, bravery, honesty. States of mind, hope, trust or ideas, education, knowledge. What these words suggest has no physical form that we may see or touch. इनका कोई physical फॉर्म नहीं होता. ठीक है. देन कम्स द कंक्रीट नाउन. स्टैंड फॉर समथिंग दैट वी कैन सी और टच. समथिंग concrete nouns stand for something that we can see or touch, something that has a physical form, something that has a position in space. Concrete nouns usually refer to people, animals, places and things. Words like glass, milk, blood, steam are also concrete nouns क्योंकि ये names of the substances हैं. इसके अंदर हम सारे people, animals, things, places को ले रहे हैं और इसके अंदर हम क्या लेंगे? substances के name भी लेंगे जैसे कि glass, milk, blood और steam. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आएगा इसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर क्या है कि जिसे हम काउंट करेंगे और काउंट नहीं भी कर पाएंगे. मोस्ट कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल. दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म जैसे कि वॉल, वॉल्स, डॉग, डॉग्स. ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है? लुक एट दिस टेबल. यू कैन सी and read few examples from here. Now see singular and plural. A noun is said to be singular or in the singular number. It refers to one person or thing. A person is said to be plural or in the plural number if it refers to more than one person or thing. The nouns girl, doll, bus, knife, baby, photo are singular. गर्ल्स, डॉल्स, बसेस, नाइव्स, बेबीज, फोटोज आर प्लूरल. यहाँ एस नहीं था, यहाँ एस लग गया तो प्लूरल. ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म. सिर्फ काउंटेबल नाउन्स की ही प्लूरल फॉर्म होती है. यहाँ पे फिर आपको फॉर्मेशंस दे रखी है.
You can have a look of all these books, books, ass, asses, buffalo, buffaloes, like this. ठीक है? You can see. These are few examples for you all. Okay. Some form in the singular as well as plural. Deer का deer ही रहेगा. Sheep, sheep. Fish, dozen, 100, aircraft. इनमें s नहीं लगता. ये सारे प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. scissors, spectacles, trousers, jeans, shorts, clothes, tongs, binoculars. सिंगुलर इन अपीयरेंस बट यूज एज प्लूरल. कैटल और पीपल हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं. प्लूरल इन अपीयरेंस बट यूज एज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे. मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, न्यूज और मीजल्स, ये सारे सिंगुलर में यूज होंगे. फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन. ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म किसकी है? काउंटेबल नाउन्स की. नाउ यू कैन सी एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 and 5. You can solve this in your notebook for your practice and go through the chapter once again. Next comes nouns. Gender, masculine gender, feminine gender. A noun that denotes a male is said to be masculine. A noun that denotes a female is said to be feminine. Masculine में क्या आएगा? Boy, man, brother, father, king, dog. और feminine में girl, woman, sister, mother, queen, bitch. Okay? अब noun that can denote both a male and a female is said to be common gender. Common gender में आपके क्या आएंगे? baby, child, parent, teacher, pupil, student, person, dog, player, cousin, friend, neighbor, bird, ये सारे हमारे क्या हैं? common gender. neuter gender में क्या है? noun that denotes a non living thing is said to be of the neuter gender. जो non living things को denote करेंगे means that is neither male nor female. जैसे book, पेन, चेयर, कार, वुड, गोल, स्कूल, ये सब हमारे न्यूट्रल जेंडर हैं. कलेक्टिव नाउन्स लाइक क्रू, फ्लॉक, क्लास, आर्मी डिनोट कलेक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स. फॉर एग्जांपल्स, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर लिविंग बीइंग्स. सिमिलरली, आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स एंड सोल्जर्स आर लिविंग बीइंग्स. बट कलेक्टिव नाउन्स आर थॉट टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. कलेक्टिव नाउन्स आर थॉट टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. अब आपको फॉर्मेशन दे रखी है, ये देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे बुल का काउ, फिशरमैन, फिशर वुमेन, यू कैन सी. इसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज है, यू कैन सॉल्व दिस फॉर योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट कम्स द नाउन केस. नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. नॉमिनेटिव में क्या है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस. ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होएगा? नॉमिनेटिव केस. जैसे नव्या एट आइसक्रीम, तो नव्या इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट. नव्या यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? एट है. क्वेश्चन इज रॉन्ग. क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो नाउन क्या है यहाँ पे? नव्या और क्वेश्चन, ये दोनों क्या है? नॉमिनेटिव केस. ठीक है. टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पुट हु और वॉट बिफोर इट. जब हमें सब्जेक्ट निकालना है तो हमें हु और वॉट पहले लगाना है. आंसर टेल्स यू व्हाट द सब्जेक्ट इज. आंसर से आपको पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है. नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूसेटिव केस. तो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वहाँ पे हमने सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की बात करी थी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस. जैसे नव्या एट आइसक्रीम, तो आइसक्रीम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट. फादर प्रेज करण फॉर हिज सिंसियरिटी. करण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रेज. तो द नाउन्स आइसक्रीम एंड करण आर इन द ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस. ठीक है. टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पुट वॉट और हुम आफ्टर इट. वहाँ पे हमने क्या बोला था? बिफोर इट. यहाँ पे वॉट और हुम आफ्टर इट. द आंसर टेल्स यू व्हाट द ऑब्जेक्ट इज. आंसर आपको बताएगा क्या आपका ऑब्जेक्ट है. नाउ नेक्स्ट कम्स द पोजेसिव केस. व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन इट इज सेड टू बी पोजेसिव केस. जैसे अनुज बैग इज ऑन द टेबल, द डॉग बिट द कैट्स टेल. यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज करे हैं. ठीक है. दिस, ये आपका क्या होता है? इज यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी. ठीक है. जैसे लॉर्ड रामास टेम्पल, वर्ड्सवर्थ, डॉग्स, इन सब में हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया. नाउ हाउ टू फॉर्म द पोजेसिव केस.
इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन वी यूज अपॉस्ट्रॉफी एस, सिंगुलर नाउन के केस में हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं, लाइक अंकल्स हाउस, किंग्स, दास, सब में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया. नेक्स्ट, विथ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग एस एंड अपॉस्ट्रॉफी एस मीन्स एस के बाद या फिर एस से पहले, दोनों करेक्ट हैं. जैसे यहाँ पे दास पूरा लिखा, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया. यहाँ पे दास लिखने के बाद अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ठीक है. अब विथ प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस वी एड जस्ट एन अपॉस्ट्रॉफी. आफ्टर दिस वी डू नॉट यूज अपॉस्ट्रॉफी एस, वी यूज ओनली अपॉस्ट्रॉफी. द बॉयज हॉस्टल, ठीक है, पूरा बॉयज लिखने के बाद लगाया. सोल्जर्स, लाइक दिस, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं. किस केस में? प्लूरल नाउन्स के केस में होता है ये. अब विथ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस वी यूज अपॉस्ट्रॉफी एस. जहाँ पे प्लूरल नाउन एस के साथ नहीं खत्म हो रहे, एंड हो रहे, तो वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा. जैसे मेन का हम मेंस तो नहीं लिखते, तो मेन अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे. चिल्ड्रन में भी हम क्या करेंगे? अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे. अब अपॉस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ कभी भी अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाया जाता. ठीक है, नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते. सी, वी डू नॉट से द पिक्चर्स फ्रेम, वी से द फ्रेम ऑफ द पिक्चर. वी डू नॉट से द कार्स व्हील्स, वी से द व्हील्स ऑफ द कार. ओके, ऐसे लिखा जाएगा. नाउ फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव्स, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी? अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करें, सिंगुलर नाउन में क्या है हमारा? जॉन्स कार. जॉन अपॉस्ट्रॉफी एस यूज किया है इन्होंने. क्या यूज किया है? अपॉस्ट्रॉफी एस. सी, लुक हियर. नेक्स्ट वाले में सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, मिस्टर दास, दास के बाद बस अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया. या फिर मिस्टर दास कार, अपॉस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं. अपॉस्ट्रॉफी एस क्या है? ज़्यादा कॉमन है. प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, माई पेरेंट्स व्यूज, पेरेंट्स के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया. नेक्स्ट, विमेंस हॉस्टल, विमेन के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया. प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस, जहाँ पे प्लूरल नाउन एस के साथ एंड नहीं होते वहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस, और जहाँ पे एस के साथ एंड होते हैं वहाँ एस के बाद लगता है. एंड अपॉस्ट्रॉफी एस यूजुअली नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स. ये टेबल इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये पढ़ लेंगे, इफ़ यू विल अंडरस्टैंड दिस, रीड दिस, देन you will find no difficulty in solving the exercise of this. Now, if we treat an object as a living being, it is quite in order to use an apostrophe with it. My country's progress, duty's call. जब हम किसी living being की, किसी ऑब्जेक्ट को एज ए लिविंग बीइंग की तरह काउंट कर रहे हैं, तो वहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. ठीक है. जब हम किसी टाइम, स्पेस या वेट की बात कर रहे हैं, तो भी हम वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. सी, डेज, वीक्स, मीटर्स. ठीक है. यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस बिफोर वर्थ, वर्थ से पहले भी. रुपीज वर्थ, 5 rupees worth of sugar. I hope it's clear. You can go through the chapter again and solve this exercise 1, 2 and 3 for your practice. Okay.